پاکستان میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مربوط عملی اقدامات۔ گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان کے 4 درجہ بہتری ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2025 جاری کر دیا۔ 2024 کے مقابلے میں پاکستان کا مجموعی سکور 1 درجہ بہتری کے ساتھ 28 پر پہنچ گیا۔ گزشتہ سال پاکستان کے 135 سرکاری اداروں نے 600 سے زائد کامیابی اصلاحات کی۔ رپورٹ میں قانون ساز اداروں اور عدلیہ میں بدعنوانی کے اشاریوں میں بھی نمایاں بہتری کا اعتراف۔ Asia, whom we had regular interactions of the multilateral forums in different countries around the globe. We had very productive, very useful and very informative sessions when His Excellency, your President, visited Pakistan. We had restricted meetings, we had detailed meetings, we had discussed all areas, the agriculture, IT, trade, economy, AI, and obviously security and defense. انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کے دفتر خارجہ امر وفود کی سطح پر مذاکرات، مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود، دونوں ممالک OIC کے پلیٹ فارم پر نمایاں کردار ادا کر رہے۔ اسلام آباد ترلائی دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا۔ لاڑکانہ کا رہائشی زخمی علی نکی اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھا۔ پنز پولی کلینک اور نجی اسپتال میں شہداء کی تعداد 35 ہو گئی۔ اب تک پنز میں 29 اور پولی کلینک میں 5 اور نجی اسپتال میں 1 زخمی شہید ہو چکے ہیں۔ ملک میں 78 سال سے بہت واقعات ہوئے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر ازالہ کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا گزشتہ 2-3 سال میں دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم دہشت گردی کی مزاحمت کرنے پر متحد نہیں۔ ملکی دفاع کے لیے شہداء کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا بھارتی پشت پناہی سے افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد نہتے پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہے۔ دہشت گردوں کا مذہب صرف دہشت گردی ہے۔ ہم اتحاد اور یکجہتی سے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان توڑ کر علیحدہ ملک بنانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ریاست امن دشمنوں کی وہ پوری قوت سے جواب دے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردی کے خلاف سرے بیکار ہر سپاہی کو مضبوط اور بااختیار بنایا جائے گا۔ شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ افغان طالبان رجیم میں بنیادی انسانی حقوق کا قتل عام، اقوام متحدہ کی چشم کشار رپورٹ جاری۔ طالبان رجیم کے عام معافی کے دعووں کے برعکس سابق حکومتی اہلکار اور سیکورٹی فورسز مسلسل نشانے پر۔ طالبان رجیم کی جانب سے خواتین پر پابندیاں مزید سخت، تعلیم، روزگار اور سفر پر رکاوٹیں برقرار۔ ماہرین طالبان رجیم پر دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرنے اور افغانستان کی بگڑتی معیشت، انسانی حقوق کی فوری بحالی پر توجہ دینے پر زور۔ اسرائیل بربریت سے باز نہ آ سکا، مزید 4 فلسطینی شہید۔ غزہ میں سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیوں پر پاکستان سمیت 8 ممالک کی شدید مذمت۔ وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں فلسطینی عوام کے حق خودارادیت اور آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کی۔ کہا اسرائیلی اقدامات 2 ریاستی حل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کو غیر قانونی اقدامات روکنے پر مجبور کرے۔ عرب امن منصوبے کے مطابق ہی پائیدار امن ممکن ہے۔ یہ اقدامات خطے کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنا سکتے ہیں۔
मगरबी किनारे पर इसराइली काबज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालफत कर दी। व्हाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप मगरबी किनारे पर इसराइली काबज की मुखालिफ। वो समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। फलस्तीनी इलाकों में इस्तेहकाम खित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीकी हदफ के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मशरक़ वस्ती में क़याम अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मगरबी किनारे को इस्तेहकाम ज़रूरी समझती है। किसी भी मुल्क की असल कुव्वत जदीद हथियारों या जंगी तैयारों में नहीं बल्कि इसके अवाम के अज़म, हौसले और साबित कदमी में पोशीदा होती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा 11 फरवरी को इंकलाब इस्लामी की सालगिरह के मौके पर कौमी यकजहती का इज़हार और मुखालिफ कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम देंगे। हिंदू तवार नजरिया बीजेपी की सियासत और भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म एजेंडा। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी एक मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी सूरत अख्तियार कर गई। सोशल मीडिया पर गर्दश करती वीडियो में असम का वज़ीर आला मुसलमानों की तस्वीर पर फायर करता दिखाई दिया। दीवार पर नस्ब तस्वीर पर कोई रहम नहीं के अल्फाज दर्ज। भारतीय अपोजिशन ने शदीद तनकीद करते हुए वज़ीर आला असम के घनौने अमल को नस्लकुशी की दावत करार दे दिया। कांग्रेस ने कहा सफाक वज़ीर आला असम अक़लियतों को हरासा करने के लिए भारतीय अवाम को उकसाता रहा। First safe city in Pakistan was established in Lahore. First IT university was established in Lahore in Pakistan. And then similarly, ladies and gentlemen, we were able to do lot of other interventions. And here we are today learning our lesson from the past. And today Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. पाकिस्तान मसनूई जहानत का मरकज बनने जा रहा। नौजवानों को एआई की मदद से नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल इंकलाब की तरफ इसी अज़म के साथ बढ़ रहा। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी मुल्कगीर मास्टर प्लान बनाने जा रही। नौजवानों की मुआशी तौर पर खुद कफील करना हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी और आलमी बैंक हुकाम से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना और सऊदी वज़ीर मुर्शिद के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी तावन पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तान एआई और टेक्नोलॉजी टैलेंट के आला मेयार को सराहा। कहा पाकिस्तान दुनिया के सरफ़हरिस्त ममालिक में शामिल है जहाँ आला मेयार का टेक टैलेंट तैयार हो रहा। सऊदी अरब अपनी तकनीकी तरक्की के अमल में पाकिस्तान टेक माहिरीन से भरपूर इस्तिफ़ादा का ख्वाहां है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उज़्बेक सफीर की मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी तावन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सफीर ने सदर मुस्लिम लीग नून को उज़्बेक के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का खत पहुँचाया। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन बेटे हैं जिन्होंने अवाम के लिए शानदार मंसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने अपने खत में वज़ीर आला मरियम नवाज अवामी फलाही मंसूबों को सराहा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी।
खारिया में नोवा इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पर्ट मुकाबला कामयाबी से इख्तिताम पसीर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीर में खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी सलाहियत का मुजाहरा करने पर शरीक टीमों को सराहा। मश्क में मुकाबले की सलाहियत और लगन की तारीफ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने इज्तिमाई तैयारियों को बढ़ाने और जदीद जंग के उभरते हुए किरदार को अपनाने के लिए कसीरुल कौमी मसरूफियात की अहमियत पर जोर दिया। ICC श्रीलंकन और UAE क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आईं। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, हमें यकीन है कि हमारी टीम खेल के जज्बे और कौमी फख्र से आलमी सतह पर कौमी शान के लिए मैदान में उतरेगी। दोस्ती का हक अदा करने पर पाकिस्तान और चेयरमैन PCB के शुक्रगुजार हैं। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम ने कहा, पाकिस्तान ने कड़े वक्तों में हमारा साथ दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के लिए मजबूत स्टैंड लिया। अमीनुल इस्लाम का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। T20 वर्ल्ड कप 2026 ना खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश को ICC इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात का इलामिया जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक ICC ने 20 करोड़ से ज़ायद शायकीन पर मुश्तमिल बांग्लादेश को अहम क्रिकेट मार्केट करार दे दिया। कहा, बांग्लादेश 2028 से 2031 के दरमियान एक ICC इवेंट की मेजबानी करेगा। ICC इवेंट की मेजबानी मामूल के तरीकाकार से मशरूत होगी। ICC T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम ग्रुप मरहले का अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे कोलंबो में इन एक्शन होंगी। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले मैच में नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे चुकी है। न्यूजीलैंड और UAE के मैच आज शेड्यूल। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका की क्रिकेट टीम में पाकिस्तान निजात फास्ट बॉलर भी शामिल। एहसान आदिल की शमूलियत सदब सिंह और फुट होने के बाद अमल में आई। ICC की टेक्निकल कमेटी ने बाकायदा मंजूरी दे दी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एहसान आदिल इससे कबल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2015 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जानिब से खेला गया। कौमी टीम के लिए 3 टेस्ट और 6 वनडे मैच में शिरकत की। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान 2 अरब 45 करोड़ रुपए में नीलामी तकरीब में मुल्तान की टीम की 20 प्राइस 182 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। ऑक्शन में 5 बिडर्स शरीक हुए। वली टेक ने मुल्तान की फ्रेंचाइज 2 अरब 45 करोड़ में खरीदी। मुल्तान फ्रेंचाइज का नाम तब्दील करके रावलपिंडी रख दिया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम पहली कुनिक कम्बर्डिंग मुहिम कामयाबी से मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवार ने कहा, टेक्नोलॉजी अब तेजी से एक तब्दीली की कुव्वत बनती जा रही है जो अब कल की दुनिया को तश्कील दे रही है।
सख्त मौसमी हालात में भी पाक फौज अवामी खिदमत में सरगर्म वादी लीपा के दुश्वार गजार इलाकों में पाक फौज के जेर निगरानी मुकामी आबादी के लिए बनाया गया अस्पताल उम्मीद की किरण बन गया। तिब्बी मरकज में अवाम की बुनियादी और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम जारी। पाक फौज की जानिब से अस्पताल में मुकामी आबादी को फ्री इलाज और मियारी अद्वियात फराहम यकीनी बनाया जा रहा। अवाम ने पाक फौज के डॉक्टर समेत तिब्बी अमले की काबिल सताइश खिदमात को भरपूर सराहा। और इस्लामाबाद, हरीपुर और एबटाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नथिया गली, ठंडियानी और बड़ाई इलाकों में बर्फबारी और ठंडी हवाएं। कंडियार और गिरदोनुमा में भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया।